Jai Hind everyone. I would like to begin this session. I would keep it very light, okay, and I have this bad habit of walking in between, so please pardon me for that. So, the agenda of the session is very simple, dealing with the illusion of placements, okay. So, before that, I would like to lay a few house rules so that you guys can understand. House rule number 1, I would be using an amalgamation of English and Hindi, because मुझे लगता है उस तरीके से हमारे cerebellum में ज़्यादा permeate होता है, right? So that is one. Second is that feel free to ask any questions that you have in between. You can just raise your hand. I'll be more than happy to answer them, because होता क्या, if you keep it parked at the end, most of the time एक तो मेरा time खत्म हो जाता है या फिर आप exhaust हो जाते हो, right? And thirdly, have fun. I understand it's induction period. Few years down the line, I was on that side of the auditorium listening to sessions. आपके लिए सारी चीज़ें नई है, right? The institute is new, the course is new, students are new. So it may become overwhelming at times, but you can have a laugh, you can have fun तो throughout the session. But इसका मतलब ये नहीं है कि हंसते बैठो group में, right? So let us start. So this particular session is placement illusion, right? Before I begin, I would really love to understand from you guys, what is your understanding of illusion? Any answers? मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे बहुत बोर लगता था जब कोई फैकल्टी आके, आपने देखा होगा वो सब बच्चों से ही निकलवाते, सो वैसा कुछ नहीं. इन केस यू आर ओपन टू शेयर इट विथ मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज एन इल्यूजन? यस सर. Jain sir, my name is Anuj Chokse. According to me, illusion is something which we have a imagination toward anything, but it's not actually the reality of the thing. Very good. Thank you, Anuj. Yes, so I think I've got my answer. He made sure that I don't have to revisit other students. So he rightly said, illusion is something which is believed to be true when it is not. अगर उसको हिंदी में बोलूँ तो वहम, right? कलयुग के भाषा में बोलूँ तो माया, right? Something which is not actually there, but you believe it is there, right? That is illusion. Now, topic ऐसा क्यों है? Why do I have something called as placement illusion? Because most of the times throughout your undergrad courses या अभी भी start होते हुए, you might have listened to कि to get a good placement you should do X, Y, Z, right? या फिर ऐसा resume होना चाहिए, ये होना चाहिए, but no one talks about the illusion, the mirage that lies behind placements, right? और वो break करने का काम आज मैं करूँगा, okay? And you can see that there goes a big idea, that is the untold stories. तो इन चीज़ों के किस्से और कहानियाँ भी मैं आपको बताऊँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम द अदर स्पीशीज ऑन द प्लैनेट इज देयर एबिलिटी टू टेल स्टोरीज, राइट? तो मैं आपको काफ़ी किस्से कहानियाँ बताऊँगा. खरगोश की तो नहीं होगी, बट इंसानों की ज़रूर होगी, राइट? एंड दीज आर ऑल रियल. तो वो मूवीज़ के पहले दिखाते हैं ना कि मूवी में दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक है, वैसे मेरे नहीं है. दीज आर एब्सोल्यूट रियल, right? So after having interacted with so many companies, industry leaders, functional HRs, ये सारा जो presentation है उसके ऊपर ही based है. So मैं start करूँगा मेरी एक छोटी सी कॉफ़ी वाली स्टोरी के साथ, right? डेट नहीं थी, clients के साथ ये था. So तुरंत यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, अच्छा तू भी, right? तो मैं भी हो सकता हूँ रे, क्यों नहीं हो सकता? So it was one of my clients meet that I was addressing to. It was 2 weeks back in BKC Mumbai, and I was there to discuss a marketing strategy for one of the startups in food. तो वहाँ पे हम 3 लोग मिलने वाले थे. The person who was scheduling the meeting is a person who is local from Mumbai. So he called me up 2 weeks before and he said कि hello अनिकेत सर, हमें मिलना है. मैंने बोला ओके सर, मिलते हैं. We discussed the agenda, but agenda से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था कुछ और चीज़ में. वो बोला सर आप आओ, I want to make sure that you test the fanciest coffee in BKC. I said okay fine. वैसे तो मैं ना कॉफ़ी पर्सन हूँ ना चाय पर्सन हूँ, मेरे वो चोचलेबाजी बिल्कुल नहीं है, राइट? बट मैंने बोला ओके. अभी होता यह है कि एक दिन पहले एज अ रिमाइंडर दिस पर्सन कॉल्स मी अप कि हेलो अनिकेत सर, आप आ रहे हो ना कल? मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ. बोले हाँ सर आइए, कॉफ़ी आपका इंतज़ार कर रही है. अभी फिर से वो कॉफ़ी के पीछे भागा है, राइट? नाउ जब मैं मिलने वाला था, द टाइम वॉज 11 AM, सो आई ऑलमोस्ट रीच देयर एंड ही अगेंस्ट कॉल मी अप कि सर आप आ गए? मैंने बोला हाँ हाँ, आई एम जस्ट एट द डोर स्टेप. सो ही सेड कि ओके सर आइए सर, और कॉफ़ी मंगा के रखूँ? मैंने बोला कि आपको शायद आपकी लाइफ पार्टनर की इतनी याद नहीं आई होगी लास्ट 3 हफ्तों में जितनी कॉफ़ी की आई है, राइट?
नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट मैं अंदर जाता हूँ, देयर इज वन मोर पर्सन, लेट्स कॉल दिस कॉफी वाला पर्सन पर्सन ए, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा, पर्सन ए, और मेरे साथ एक पर्सन बी भी है जो उसी कंपनी से है फ्रॉम द मार्केटिंग टीम. वी सिट, विद इन नो मिनट्स दिस पर्सन कॉल्स अप द कैप्टन, कैप्टन इधर आओ, एंड कुछ अलग इशारों के साथ वो बोलता है, ये कुछ तो फैंसी नाम था उस कॉफी का, मुझे याद भी नहीं, डालगोना फाल्गोना मालगोना जो भी था, राइट. तो वो कॉफी उसने बोला लेके आओ, देन द कॉफी कम्स अप इन अंदर 10-15 मिनट्स, वो आती है पूरा ट्रे में, वो कैप्टन प्रॉपरली उसको रखता है. उसके साथ कुछ एक अजीब सा कंटेनर दिया गया था, ऐसा टावर टाइप, और उसमें कुछ कॉफी बीन्स, कोकोआ, ये वो कुछ फ्लैक्स ये था, कुछ आई डोंट नो, कुछ पाउचेस थे अलग ही जो मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम नॉट अ कॉन्यूजर ऑफ कॉफी. तो आगे होता यह है कि मैं पहले सिप लेता हूँ, राइट. तो उसके साथ वो स्टरर था, वो स्टर करके आई टेक द फर्स्ट सिप, एंड पता नहीं मुझे वो बहुत, मतलब जो उसने, उस इंसान ने जो मेरे सर पे जो तांडव नचाया था लास्ट एक हफ्ते से कि कॉफी पीनी है, आई डिड नॉट फाइंड मैचिंग इट टू दैट लेवल. इट वॉज नॉट बैड, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड. सडनली मेरी नजर ऐसे इमीडिएटली मेरे राइट में बैठे पर्सन बी के साथ गई, जो उनका मार्केटिंग टीम में से था. उसने भी मेरे तरफ देखा, एंड ही हैड द सेम थिंग एज वी डू. ये आपने देखा होगा जब आप बचपन में आप कहीं पे खाना खाने जाते थे, एंड आपका सिबलिंग आपके बाजू में बैठता था, राइट, एंड देन यू वांटेड गुलाब जामुन एंड यू आर लाइक, तो यहां पे कुछ उल्टा हो रहा था कि कुछ ऑफ है. दैट पर्सन रियलाइज्ड, एंड हम कुछ बोले उससे पहले उस इंसान ने बोला, वैसे कुछ मजा नहीं आ रहा है. सो ही कॉल्ड अप द कैप्टन एंड ही सेड कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, राइट. सो वो कैप्टन आए, और उन कैप्टन ने काफी एफर्ट लेके वो पूरा टॉवर कैसे यूज करना है वो बताया. सो उसमें कुछ इमल्शन डालना था, वो जो पाउचेस थे, सो कुछ 2-3 इमल्शन डालने थे, वो फ्लैग्स डालने थे, फिर वो स्वर्ल करना था, एक्चुअली वो स्टर नहीं करना था, इट वाज अ स्वर्लर, वो स्वर्ल करना था, एंड देन इमीडिएटली जैसे लोग वाइन पीते उस तरीके से वो अरोमा आए, उस तरीके से वो पीना था, राइट. हाँ, नाउ इट टेस्टेड वेल. सो मैं इतना ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करता है, बट जितना लिमिटेड किया उसके बेसिस पे आई कुड से या इट वाज वन ऑफ द गुड कॉफ़ीज दैट आई हैव हैड, एंड नाउ दैट पर्सन वाज हैप्पी. अब ये कहानी बताने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा. वो इंसान ने मुझे इतना कुछ उस कॉफ़ी के बारे में बता के रखा था दैट आई वॉज एंटिसिपेटिंग समथिंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड व्हेन आई टेस्टेड द फर्स्ट सिप आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड. So I had an illusion that the coffee would be X, but in reality it turned out to be Y. X minus Y is illusion. और ये illusion पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान आप सब लोगों के साथ, एक रिक्रूटर के साथ 2 और कॉलेज के साथ 3 होने वाला है. इन सारे स्टेक होल्डर्स को मैं बताता हूँ, राइट. तो हम थ्रू आउट द स्टोरी हम डिस्कस करेंगे कि मैंने सिर्फ आप नहीं बोला, मैंने बोला ये इल्यूजन तीनों के साथ होने वाला है. It will happen with you, it will happen with the company. When I say company, the representatives, especially HRs and the college. So let us try to understand how. So for an instance, अभी since मैंने कॉफ़ी से शुरुआत की ही है, तो मैं कॉफ़ी को ही पकड़ के रखता हूँ. By the way, मैंने कॉफ़ी की स्टोरी क्यों ली मालूम है आपके इंडक्शन के लिए, कोई आइडिया? So imagine that this is a coffee, maybe an ice cream based coffee that you have, and you can see उसमें काफ़ी layers है. मैंने जो कॉफ़ी पी थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, सिर्फ उसमें वो आइसक्रीम नहीं था. तो यू कैन सी दैट देयर इज अ प्लेट, इन केस यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट प्रॉपरली, देयर आर अ फ्यू कोको बीन्स, द कॉफ़ी बीन्स, एंड देन यू हैव द कंटेनर, द ग्लास, एंड उसमें अलग अलग लेयर्स है. हम क्या करते हैं, एक एक लेयर को डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट्स सो दैट इट स्टेज विथ यू फॉर एटलीस्ट द रिमाइंडर ऑफ द सीजन. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज द ग्लास होल्डर, राइट. एंड ये होल्डर मतलब क्या है, वो चीज जिसने कॉफी को पकड़ के रखा है ना. इन योर केस व्हाट इज द कॉफी होल्डर, व्हाट इज द सब्सटेंस होल्डर, दैट होल्डर इज योर रेज्यूमे. नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि रेज्यूमे आपका होल्डर है, बिकॉज इवन बिफोर यू इंटरैक्ट विथ द कंपनी, विद द HR, द रेज्यूमे हैज ऑलरेडी गॉन एंड सेड हाई टू द HR, हे हेलो IIBM से हूं मैं, जय हिंद, राइट. So resume is the first POC, that is the first point of contact that is established when it comes to the relationship in between the candidate and the company. तो illusion number 1 क्या है? Illusion number 1 ये है कि to believe as students resume is a piece of paper, right? आप में से काफी लोग ये मानते हो कि resume क्या है?
मेरे जो 10th के मार्क है, 12th के मार्क है, ग्रेजुएशन के मार्क्स है, मेरे जो प्रोजेक्ट्स है, मैं जो इंटर्नशिप करूंगा, दैट इज रेज्यूमे, बराबर तो है। और क्या मतलब बाजू वाले का लेके कुछ आचार तो नहीं डालेंगे उसमें, है ना, यही तो रेज्यूमे है। बट दिस इज वेयर 72% ऑफ द एमबीए स्टूडेंट्स एज पर द नेल्सन रिपोर्ट 2023 सेज दैट 72% ऑफ द एमबीए ग्रेड के रेज्यूमेज आर नॉट रेलेवेंट टू द रोल दैट दे आर अप्लाइंग फॉर। ये क्यों होता है? बिकॉज हियर कम्स द फर्स्ट इल्यूजन, ये मानना कि मैंने जो किया है और पेपर में डालना है दैट इज रेज्यूमे, वो मेरा प्रोफाइल है। मैंने मेरे ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट किया था वो मैं डालूंगा, वरना मेरा रेज्यूमे खाली रह जाएगा। मैंने जो सर्टिफिकेशंस कॉलेज ने बोले आई शुड डू देम, जो प्रोजेक्ट्स मेरे हैं आई शुड डू देम, सो ऑन सो फोर्थ। बट देयर लाइज अ स्टार्क डिफरेंस इन दैट इल्यूजन एंड रियलिटी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट उससे पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट इन केस यू गाइज कैन शेड सम लाइट ऑन द डिफरेंस इन बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी इन केस देयर इज एनी। If you believe that they are synonymous to each other, it's okay, you can chuck that. But अगर आपको लग रहा है कि दोनों में डिफरेंस है तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा। So, CV describes your whole personality, while resume is more about your professional career achievements and all. Okay, okay. Thank you, Sham. Please sit. What else? इस रो से लेते हैं। I believe in gender diversity. Yes, anyone? Yes, ma'am. Sir, resume is, I believe, for freshers, like for the first time who are doing some internships or job, corporate jobs, and CV is for the experienced ones. Okay, thank you. Thank you for the input. Thanks, sir. Okay, so sorry guys, तो बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर किया था मैं immediately disclose कर देता हूँ, right? So resume, if you see, now the differences lie in which part of the country are you talking about, but for practical purposes, and I am referring to Harvard Business School review written by Jonathan Schwartz 2021 article, right? आप अगर जाके पढ़ोगे वो आर्टिकल, आपको वो पब्लिक फोरम पे है, आपको आराम से मिल जाएगा। यू विल गेट टू नो दैट डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सीवी का फुल फॉर्म सबको पता ही है, राइट? व्हाट इज इट? curriculum vitae, right? So curriculum, what do you mean by curriculum? Right, syllabus, academics, something which pertains to academics, right? So that is curriculum. What is vitae? It's a Latin word for vital. Vital means important, right? Now important academic content is CV. तो आपको क्या लगता है CV का काम होगा फिर? So any document which encapsulates your major academic learnings, right? It may be your research paper, it may be your thesis, publication, projects, whatever you have done, that is a part of CV. And unlike the notion that usually people have, CV is not the document which is used for job purpose, but it is used when you apply for higher education, let's say an MS, MPhil, PhD, especially abroad, yeah, even in India. Because it's an academic document. It covers everything that you have done as a part of your academic achievements. Okay, on the other hand, resume, it has a very similar connotation to that of resume word in English, and resume means to start again, वापस start करना। तो since आप लोग education करके आए हो, but आपको आपका career start करना है, उसलिए जो document आप बनाते हो, which encompasses majorly your skills and other activities which justifies कि आपको क्यों कंपनी के लिए आप एसेट हो, those parameters are part of resume, and hence resume is the document that is typically used while applying for a job. But in Asian countries, most of the time CV and resume are used interchangeably, because ये difference काफी लोगों को पता नहीं है, because we usually use, I don't know how many of you are from Maharashtra over here, या बाकी की भी states में ये concept थी या नहीं sir, I don't know, but जब मैं 10th standard में था ना, तो एक guide book आती थी छोटी, क्या आपको पता है? गाइड। और ना एक बुक होती थी, उसको बोलते थे 21 अपेक्षित, 21 एक्सपेक्टेड कुछ टॉपिक्स। तो हमारी जो जनता है, वी आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत, राइट? हमें उसके बाहर जाना ही नहीं, इसलिए यू विल सी मोस्ट ऑफ द इवन बी स्कूल्स दे यूजुअली से सीवी भेजना,
सीवी क्यों भेजना, तेरे को रिसर्च करना है क्या? इट शुड बी रेज्यूमे. बट हाँ, वी डोंट कैच दैट अप बिकॉज वो इतना अभी हम सबके बीच में इंस्क्राइब हो चुका है दैट इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू डू दैट. तो काफी बार मैं भी बोल देता हूँ हाँ भेज दे सीवी, राइट, बट इट शुड आइडियली बी रेज्यूमे. ये डिफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया. लेट्स से इन केस यू एनकाउंटर समवन हु इज एन ओल्ड स्कूल HR और मैनेजर, ही विल बी क्वाइट एजिटेटेड अगर आप गलत वर्ड यूज करते हो. तो यू शुड नो दैट. ओके, नाउ मूविंग अहेड. ओके, तो इल्यूजन जो है वो इल्यूजन मैंने आपको बताया. ये समझना दैट एनी एंड एवरी पीस ऑफ पेपर विच एंटेल्स योर क्रेडेंशियल्स इज अ रेज्यूमे, वो गलत क्यों है, वो इल्यूजन क्यों है. मैं आपको फिर से अभी दे रहा हूं स्टोरी नंबर 2. राइट, मैं बहुत बड़ा फूडी हूं, इसलिए मेरे स्टोरीज जो है वो ज्यादा करके खाने के आसपास बहुत होते हैं. राइट, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. मुझे मालूम है कि आपका अभी लंच ब्रेक जल्दी होने वाला है और आपको भूख भी लगी होगी. बाय द वे, व्हाट डिड यू गाइस हैव फॉर द ब्रेकफास्ट? पास्ता का नाश्ता. अच्छा, फाइन. सो इमेजिन करो कि लेट्स से, आपका नाम क्या है? अरे बैठो बैठो बैठो. Mahir. Okay, let's say Mahir decides to invite me for dinner at his place. Mahir टेंशन में आ गया, बाप रे अभी ये आएगा. Okay, he is very kind. So let's say Mahir says कि sir please come to my place for a dinner, and I said okay आता हूँ. So dinner के दिन सुबह ये मुझे कॉल करता है कि सर आज आप आ रहे हो इवनिंग में, so what should I prepare? And I'm like कि कुछ भी बना दे. लेट्स से पाव भाजी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अ बेसिक सिंपल डिश जो ऑलमोस्ट सबको पसंद आती है. सो आई सेड यार कुछ नहीं, कुछ फैंसी मत बनाना, आई एम अ देसी इंसान, यू कैन मेक पाव भाजी. सो ही सेड ओके सर. क्योंकि मेरे को वो डिशेस भाते नहीं है, वो जो फैंसी डिशेस आप जो खाते हो आजकल, वो जो फूड व्लॉगर्स के वजह से है ना, वो जो 2.5-3 किलो मेयोनीज डाल के, राइट, सो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक. सो मूविंग अहेड, talking about this fact, so what this person does is, Mahir what he does is कि वो बोलता है okay let me try to see up what's there in my refrigerator, and he opens up the refrigerator. He is able to see कि कुछ करेले है, bitter gourds. He is able to see there is some bottle gourds, कुछ दूधी है, दूधी बोलते हैं ना उसको, right? लौकी है, and then let's say और कुछ 1-2 सब्जियां है, right? So what he does is वो बोलता है कि पाव भाजी खानी है ना, पाव भाजी में भाजी मतलब क्या, एवरीथिंग मिक्स्ड, चलो पाव भाजी, मसाला भी है अपने पास, प्रिपेयर दैट पाव भाजी. तो मैं अभी पहुंचने वाला हूँ एंड सडनली ही रियलाइजेस कि अरे हमने पाव तो लिए ही नहीं, कोई नहीं, हमारे पास टोस्ट है, रस्क. सो ही टेक्स दैट रस्क और एक थाली में वो क्या करता है, मुझे सब्जी देता है, पाव भाजी की भाजी, एंड गिव्स मी दोज रस्क. नाउ सिंस आई वांट टू बी अ गुड गेस्ट, राइट, सो मैं खा लूँगा, बट कहीं ना कहीं जाते समय अगर मैं इंडियन फैमिली से आता हूँ, तो आपको इंडियन फैमिली क्यों, क्योंकि शादियों से जाने के बाद खाने के बारे में जितना क्रिटिसिज्म इंडियंस करते हैं, मुझे नहीं लगता है वो किसी भी कोने में होता है, राइट. तो मानो कि मैं वो नहीं हूं एंड आई एम लाइक ठीक है, बट स्टिल इनसाइड इन माई हार्ट आई फील कि यार पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है माहिर तो बढ़िया इंसान है, कुड हैव बीन बेटर, राइट. अभी उसने कुछ गलत तो किया नहीं, उसने तो मुझे खिला दिया पाव भाजी, क्या गलती की उस बेचारे ने, कुछ गलती नहीं की. ही मेड श्योर दैट देयर आर वेजीज, इनफैक्ट ही मेड श्योर कि पोटैटो जिसमें हेवी कार्ब्स है उसको सब्स्टिट्यूट करके ही यूज वेरी हेल्दी कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ दैट लौकी की सब्जी एंड करेला, मेकिंग श्योर दैट आई मेंटेन माई फिजिक, राइट. सो द प्रॉब्लम इज अगेन इल्यूजन नंबर 1 जो मैं आपको बात कर रहा था, देयर इज गैप बिटवीन माई एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पाव भाजी एंड देयर इज गैप बिटवीन व्हाट ही हैज सर्व्ड. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट एन एमलेस रेज्यूमे. रेज्यूमे बनाते समय पहला सवाल बच्चों का, सर वो टेम्पलेट कब दोगे? आपको सिर्फ टेम्पलेट चाहिए एंड यू नीड टू डंप योर डेटा इन दैट. हाँ, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हाँ इंटर्नशिप, ये वो ना, दैट इज नॉट हाउ इट गोज. सो क्विकली, मैं वो डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज फिर डीप में जाऊंगा तो मेरे को 1 महीने सेशन लेने पड़ेंगे. देर आर 4 steps टू मेक श्योर दैट योर इल्यूजन गेट्स broken and your illusion converts into the reality part. And how do you do that? By 4 steps. Very first thing is reverse engineer. जैसे अगर पाव भाजी का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, had he
sat down in the morning and realized, okay, these are the grocery items that I should be ready with, it would have been better. तो वैसे अगर आप में से कोई SAP SD के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई SAP FICO के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई लेट्स से SAP MM के लिए अप्लाई कर रहा है, whatever module it is, and you understand that for my SAP role I need to have these responsibilities lined up, I need to have these skills, I need to know these technical tools, and if you reverse engineer the content right from the start कि okay, let me make a laundry list कि ये 10 चीजें हैं जो मुझे करनी पड़ेगी अगले 1 साल में या 6 महीने में, right? So I need to have certifications on ये module, I need to have my study projects on this module. That is when step 1 starts kicking in, and that step is creating a list of the content that you need to put on your resume. ये बिल्कुल मिथ है अगर आपको किसी ने बोला है कि रेज्यूमे जो है वो यहाँ पे आके नहीं बनता है. इनफैक्ट बी स्कूल में ही आके रेज्यूमे बनते हैं, राइट? सो यू कैन यूटिलाइज दोस 3 to 6 months रियली कंस्ट्रक्टिवली एंड मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे का कंटेंट है वो रेडी है. दैट इज पार्ट नंबर 1. दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग, बिकॉज वी गो उल्टा. हम ये देखते हैं कि उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम करेंगे. उसको बोलते हैं प्लांट करना, देसी भाषा में ना प्लांट करके रखा है मैंने. सेकेंड, प्रिपरेशन. नाउ सिंस द कंटेंट इज रेडी, आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट. काफी लोग दे आस्क मी कि सर कौन से सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, एंड देन आई गिव देम प्लेथोरा ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, एंड आई एम वेरी स्टक जब मुझे बाद में पता चलता है मॉक्स के टाइम दैट दे आर नॉट एट ऑल रेडी विद द सर्टिफिकेशन. मुझे बोलते हैं अभी तक नहीं किया है, तो कब करेगा? So your second responsibility, be it internship, be it project, be it certification, be it any social work, you should immediately pursue it and make sure that in the next 3 to 6 months you have completed the preparation. And when I say preparation, it means any heck and deck question that is asked on that particular aspect should be answered to the minutest of the detail. उसका मतलब होता है preparation, right? कुछ भी दाए बाए आड़े तेड़े आपको कुछ भी पूछा जाए, you should be ready with that. Next comes representation. अभी आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है. Now you want to put that on the piece of paper which is the resume. Now आप इमेजिन करो कि जैसे मैं उस कॉफी की बात कर रहा था, अभी वो अगर वो 800-900 रुपए की कॉफी लाता है ऐसे वो मग्गा में या ऐसे कोई कप में जो ठेले पे मिलती है, टपरी पे मिलती है, would someone pay for that? Not at all. So how do you expect that जो काम आपने किया है वो आप किसी भी तरीके से चैट जीपीटी को काम पे लगा के उसमें डाल दोगे? चैट जीपीटी इज योर एनिमी व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग रेज्यूमे. मुझसे लिख के ले लो. इट कैन बी अ टूल अगर आप उसको प्राइमरी सोर्स, दैट अप्लाइज एवरीवेयर, बट रेज्यूमे में मैंने देखा है व्हाट स्टूडेंट्स डू इज दे गिव प्रॉम्प्ट्स. वो बताते हैं कि दिस इज व्हाट माय टॉपिक इज एंड डू दिस फॉर मी, एंड देन दे पुट दैट. There are multiple disasters that are going to happen because of that. तो वो नहीं करना है. आपको क्या करना है? डीप में नहीं जाते हुए शॉर्टली बताऊंगा. Your resume should be quantitative and qualitative at the same time. What that means is every line that you put on the resume should show the value that you have created through that activity, one, and that value should be demonstrated in numbers if possible. If possible. I know everywhere वो possible नहीं होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, you'll get it in a better way. Let's say आपने SAP SD आप कर रहे हो and you guys have done a project on SAP SD, and let's say that project is on O2C, order to cash cycle. अभी आपने वो पूरा किया है and you have started writing it, and here is studied about O2C cycle process in the project. Vis-a-vis someone realizing that I should make it qualitative and quantitative, proactively leveraged O2C processes for 124 projects, thereby improving the efficiency by 33%, is conversion of the qualitative metric into quantitative metric, and you can immediately see the difference in the value that the same piece of work can create for yourself. Are you getting it? Are hi Anna? Are you guys with me? Yes, sir. Okay, fine. मुझे लगा कि हैंग तो नहीं हो गए. So that is the representation part, right? So detail में बाद में हम देखेंगे, but अभी के लिए you should understand this, that your ability to transcribe that work that you have done onto a piece of paper using best quantitative and qualitative
वर्ड्स इज व्हाट मेक्स योर रेज्यूमे ए क्लास, राइट? फिर उसका ATS स्कोर कुछ भी आए, इट डजंट मैटर. And last, demonstration. Now, since you are ready with that piece of paper and you have already submitted that resume to the placement committee or to the company, abhi bari aa jati hai when you sit in the interview, provided your resume gets shortlisted, right? Let's say aap sabka resume shortlist hua hai and then you are sitting over there. Abhi hota kya hai that आपका PI चल रहा है and that person is asking you something on any piece that you have done. Let's say you have done an internship and the person is can you explain आपने exactly इस internship में क्या किया? And you are all around the place. So hello sir, मैं my company was बाबूराव गणपतराव Associates and मेरे कंपनी में सर मैं कुछ नहीं, ज़्यादा काम नहीं होता था, बिल बुक बनाता था and उसके साथ साथ सर 3 घंटे के बाद बाकी का टाइम में सोते रहता था, राइट? सो ऑन सो फोर्थ. रादर देन दैट, कैन यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल वेर इन द पर्सन इज सेइंग दैट सर आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव वर्कड विद बाबूराव गणपतराव एसोसिएट्स, विच इज, अभी बाबूराव गणपतराव एसोसिएट्स उसको नहीं पता है क्या है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सर विच इज लेट्स से अ CA accounting firm. Sir, there were 3 major responsibilities that I handle. First, it was one of the leading SAP, let's say, execution players. So I've worked actively on pricing control mechanism. Secondly, sir, I've interacted with multiple stakeholders and let's say 10 of them were SAP implementation activists. And third, I'm very happy to say that I was appreciated by Oracle, one of our partners, for successful execution of the project in 15 days. So now you are creating an impact. आप बोलोगे सर इतना तो हम करते ही नहीं हो, यही तो दिखाना है. आपको क्या लगता है? सॉरी टू से दैट सर, मैं खुद एक MBA हूं, बट आई ऑलवेज से दिस, MBAs को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है मालूम है? दिखावे के लिए. आई एम नॉट लाइंग टू यू. ऑफ कोर्स दे हैव दैट सर्टेन कैलिबर एंड टैलेंट, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट फैक्ट, बट आपको वो चीज आप जब तक कन्वे नहीं करोगे, हाउ विल दैट पर्सन अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट वैल्यू? आप समझ रहे हो ना? जैसे आप मुझे पहली बार मिल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बैठा हूं. हाउ विल यू नो व्हाट आई एम? अभी तो चलो शी हैज बीन वेरी काइंड, उसने मेरे क्रेडेंशियल्स बता दिए इसलिए आपको पता है, वरना यू विल जस्ट कीप ऑन फिगरिंग आउट ये कौन है. उसी तरीके से द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो, इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर फॉर द रिक्रूटर to break that illusion and convert it into a reality that yes, ये candidate अच्छा है, right? And I believe every one of you want to break this illusion, right? Clear है? Let's move to the second part and that is the second layer. जो milk base होता है कॉफी में, मैं उसको बोलता हूँ the solid base, because हाँ of course most of the people prefer black coffee, but I'm talking about a milk based coffee. So solid base is nothing but your academics. Right, especially when you guys are SAP oriented students, it becomes very integral कि आप लोग जो है आपके academics को सही सही रखो. Academics को सही सही रखो का मतलब क्या है? It means that whatever the syllabus that you guys have currently, there is a big notion that students usually keep on asking me that sir, हमने सुना है कि कोई फेल नहीं होता MBA में, हमने सुना है कि असाइनमेंट इस तरीके से की जाइए. दैट इज नॉट द ट्रू स्टोरी ऑफ अ गुड MBA प्रोग्राम. यू शुड मेक श्योर अंडरग्रेड तक जो किया वो किया, बट हियर यू शुड मेक श्योर दैट एवरी पीस दैट यू आर बीइंग टॉट यू शुड प्रैक्टिस इट इनफ सो दैट आपका सॉलिड बेस बहुत स्ट्रांग हो. अगर आपको कोई ये बता रहा है दैट विदाउट द एकेडमिक पार्ट आप चले जाओगे, यू आर मिस्टेकन. दैट इज नॉट द ट्रू थिंग. स्पेशली फॉर SAP स्टूडेंट्स इट बिकम्स वेरी इंटीग्रल. Right, so you should know all the nitty-gritties of this, and you guys are very blessed that you are part of the IIBM family. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ because I'm standing on the platform in IIBM, but I have been associated with a lot of colleges across India recently, and I've seen, मैं देखते रहता हूँ, so I've seen that the efforts that the institute puts in, तो आपको वो एक resource अच्छा मिल रहा है. So make sure you make the best out of it, because इस age में वो बहुत common होता है कि ChatGPT से लेके assignment submit करना, राइट, आधे टाइम सेशन में सोते रहना, राइट, बट ट्राई टू अवॉइड दैट बिकॉज दैट इज हाउ योर बेस विल इम्प्रूव. सो एकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या क्या आता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी पहले हो चुकी है, बट वाई आई एम आइटरेटिंग दिस थिंग इज बिकॉज
in case आप में से कुछ लोगों के पास ये pieces हो, you can use them while you are building your profile. First, your regular academics, and that encompasses your 10th standard, 12th standard, graduation. In case आप में से किसी का double post graduation कर रहे होगे तो post graduation. So everything will be taken care of. Please make sure that your CGPA, अगर अब तक नहीं हुआ है, your CGPA should be maintained at a significantly higher level. Okay, it is very essential. काफ़ी companies का filter होता है percentage या CGPA का. You might be the brightest student in the classroom, but let's say you flunk one of the subjects and you don't get good grades, you're not going to get that shortlist. So don't make yourself miserable. Focus on academics. Make sure that you're in the top 30% of the batch, because जो top 30% of the batch में होता है वो batch के average package को beat करता है. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप IIM अहमदाबाद में जाओ, आप हार्वर्ड में जाओ, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए. जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर IIM अहमदाबाद का एवरेज पिछले साल 34.2 था. मैंने बोला तू 34.2 क्यों सोच रहा है? तू ये क्यों नहीं सोच रहा है कि 23 साल के बच्चे ने लास्ट ईयर 1.2 CR का पैकेज निकाला? व्हाई आर यू नॉट एमिंग फॉर दैट, राइट? सो यू शुड ऑलवेज थिंक कि हाउ डू आई बी इन द टॉप 30%, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज. नेवर बी इन द बॉटम 30%, बिकॉज दैट इज वेयर you will not get any opportunity. Next is scholarships. In case you guys have received scholarships, it may be your 4th standard, 7th standard, Abacus, Olympiads, NSTSC, NTS, MTS, जो भी रहा है, that can be recorded. ये क्यों करके रखो? Because most of your certificates would be in haywire, right? किसी तो मकान में पड़े होगे आपके. In case there is still time, so make sure you have those resources. And competitive exams, आप में से काफ़ी लोगों ने दुनिया भर की जो मैनेजमेंट एग्जाम्स होती है उसमें कुछ लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, राइट? दी ZAT, CMATs, NMATs, फलाना ढिमकाज ऑफ द वर्ल्ड. सो मेक श्योर इन केस यू आर इन द top 5 or top 10 percentile, you can put that as well on your resume, right? So start jotting down these points. ये बहुत ज़रूरी होता है. इन केस आप में से किसी ने कोई होम्योपैथी सेशन किया है, you might have seen that that person takes your entire history. अरे वो लिखते रहता है. वैसे आपको करना चाहिए. रेज्यूमे को भी डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए. You should keep on. तो when I was in JB, I still remember my second day in induction. I was told by one of the mentors there कि what you need to do is you need to take 2 blank pieces of paper and first standard या second standard से from the time that you can recall your memory, write down everything that you have done in school या outside school. So that मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी थिंक ये नहीं है, बट कभी कभी वैसी कोई चीज़ होती है जो हमने की होती है. अभी वो कैसे डालना है उसका लोड आप मत लो. मैंने कुछ नमूने दिए हैं आपको. बाय दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैं ऐसी चीज़ को ऐसे करके दिखा सकता हूँ, राइट? सो दैट इज नॉट अ टेंशन. सो दीज आर द 3 थिंग्स. सो मेकिंग श्योर. तो सेकेंड थिंग इज द सेकेंड इल्यूजन दैट मैं बस प्लेसमेंट पे ध्यान दूंगा, मुझे सिर्फ टाई पहन के बैठना है. सो दैट इज एन इल्यूजन. यू नीड टू वर्क हार्ड इन योर एकेडमिक्स, बिकॉज दिस इज अ मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्पेशली अ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम. यू कैनॉट गिव, जैसे आप वो वाइवा में करते होगे ना आपके ग्रेजुएशन के, राइट? व्हाट इज थर्मिस्टर? सर थर्मिस्टर इज अ थर्मिस्टर एंड अ सिस्टम विच इज कॉल्ड थर्मिस्टर. तो वैसे यहाँ पे काम में नहीं आता है, राइट? यू नीड टू हैव द रेलेवेंट स्किल्स. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड इल्यूजन एंड दैट इज द कोर एलिमेंट. अगर आप कोर एलिमेंट देखोगे, दैट इज द कॉफी पार्ट, द कॉफी एक्सट्रैक्ट, राइट? नाउ दैट इज इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स. नाउ ये क्यों कोर है? बिकॉज फॉर अ रिक्रूटर it is practically impossible to ascertain that are you really an SAP enthusiast or a learner, or are you doing that just because you are offered the SAP program. You might be having fancy, जैसे मैंने illusion number 3 जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है. I've seen students usually putting their engineering projects, BCom projects, BSc projects. आप मुझे बताओ किसी ने 2 स्ट्रोक मोटर इंजन पे काम किया है, उसका वो डेलॉइट का एनालिस्ट क्या करेगा? मेरे को बोटर बिठा देगा मेरे बच्चे के लिए, ऐसा बोलेगा? That won't be taking place. So how do you create relevance? It is when you focus on your internships, your certifications and capstone projects. Now let us try to talk about what types of internships should you pursue. आप में से कुछ लोग might have been proactive and you would have already done internships. Internships और WorkX में एक डिस्काउंट मिलता है आपको. वो ये होता है that if you have done it in a good profile or with a good organization, any profile वाली internship works. If you have really worked well, let's say you have done something in sales earlier, you have done something in equity research earlier,
दैट विल हेल्प. आपको काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये एक्सपीरियंस क्यों डाला है. अरे इट इज़ माई एक्सपीरियंस based upon which I've come here. So if you have an experience and in case you have an internship, that particular thing from a good reputed institute, yeah, the work was really good, that you can put. By the way, मैंने एक myth देखा हुआ है जो earlier भी I have observed, that is work-ex related. मैं quickly बताऊंगा so that आप लोगों को गलती ना करो. आपको क्या लगता है work experience किसे बोलते हैं? What is work-ex? Yes. Jain sir, my name is Harsh Srivastav. The work experience is something which we learn while working in an institution. Okay. Thank you, Harsh. Thank you for the input. Anyone else? Yes, sir. Jain sir, my name is Aryan Chaturvedi. WorkX is you have WorkX when you are a full-time employee in a particular organization. Okay. What do you mean by full-time employee? So you are not. I'm getting you. That's why I'm Yeah. questioning you. Yeah. So you are registered with a company as an employee and not as an intern or a freelancer or something which is Okay. temporary more than. Okay. Thank you. Thank you, Aryan. Yeah. Thank So, you. work experience, अगर आपको इंडिया में बताना है that you have work experience, it is marked by 3 characteristics. So remember these 3. First, your work should only commence after the completion of the academic degree. काफी लोगों को ये वहम होता है कि सर मेरा ना बीकॉम कॉलेज ना पार्ट टाइम होता था, मेरे इसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल पुट वर्क एक्स that you have started doing in the second year. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने झूठ किया. Most of the students actually work, but as per the UGC rule, that is not considered as work-ex. It's considered as an internship. Anything that you pursue under the helm of the education academic degree will be treated as an internship, apprenticeship, project. This is what the UGC guidelines say. जाके देख लो. तो अगर आपके बीकॉम बीबीए के टाइम आपने कुछ किया है, बीफार्म के टाइम बीएससी जो भी आपकी डिग्री है, दैट विल नेवर बी काउंटेड एज वर्क एक्स. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यू शुड हैव अ वैलिड appointment letter as well as a relieving letter called as experience letter, right, with you, and that should be on the proper letterhead of the company, signed and stamped by the authority. काफी लोग कैनवा में खुद ही बना लेते हैं और कॉलेज को चिपकाते हैं, वैसा नहीं होता है. दैट इज द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो है लास्ट 3 months की सैलरी स्लिप्स यू शुड हैव, एंड इफ पॉसिबल अ रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविडेंट फंड अकाउंट, द पीएफ अकाउंट. अगर ये चीजें आपके पास है तो आप बोल सकते हो दैट यू हैव अ प्रोफेशनल वर्क एक्स, वरना इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल वर्क एक्स. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन के टाइम नहीं होना चाहिए. आपके पास रिलीविंग लेटर, कम से कम रिलीविंग लेटर होना चाहिए विच क्लियरली स्टेट्स दैट यू आर एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर व्हाट ड्यूरेशन एज द कैपेसिटी ऑफ डक. एंड ऑफ कोर्स अ रिमार्क दैट यू हैव नॉट, वहाँ पे कुछ कांड करके नहीं आए हो तुम, राइट. सो दैट ऑल्सो शुड बी देयर. एंड देन सैलरी स्लिप्स एंड इफ प्रेफरेबल अकाउंट अंडर पीएफ, राइट. सो ये कंडीशंस बहुत जरूरी है. ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स डे इन डे आउट पुटिंग इन वर्क एक्स ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव डन. Now there is a new trend that has come up for the last 4 to 5 years, especially after pandemic, that I've seen. जिन लोगों के फैमिली बिजनेस होते हैं वो उसको मस्त वर्क एक्स में कन्वर्ट करके बताते हैं. कोई बुराई नहीं उसको डालने में, बट मेक इट वेल. अच्छा सा लेटर हेड बनाओ. काफ़ी कंपनीज में जैसे कंपनीज अगर देसी है सो दे डोंट हैव दोज थिंग्स, राइट. सो आप बना के दो, उसको स्टैम्प लो, साइन लो, राइट. मतलब स्टूडेंट्स बहुत भोले होते हैं. जैसे लेट से, व्हाट इज योर सरनेम? Banerjee. Let's say his surname is Banerjee. So Banerjee साहब क्या करेंगे? He will sit for the interview and on his resume would be written Banerjee and Sons Workings. Right? So आजकल almost 30 to 40% of the work ex जो देखने को मिलता है वो इसी टाइप का वर्क एक्स है. एक तो किसी के पहचान का या फैमिली बिजनेस का. If you are doing it, do it really well. है ना? एक कहावत है ना, if you want to copy it so well that it beats the original, right? तो उस तरीके से आपने करना चाहिए. Now types of certifications. See,
I am very strict when it comes to certifications because I don't subscribe to this fact that boss, let's say I'm applying for an SAP SD role and certification that I have is digital marketing, right? या फिर something which has to do of basics of accounting. Of course, एखादा दूसरा चल जाता है, but majority of the part should be something, yeah, the closest you can do is something to do with sales and distribution. But majority of the part should be something related to SAP, right? So certifications ऐसे pick करो. Most of the times I've seen students say कि sir नहीं, but हमारे undergrad college ने इसे free में दिया था, तो क्या मुफ्त का है तो सब कुछ तो डालेगा उसमें. Spend some bucks, spend some money, and try to do relevant type of certifications. That is very important. And lastly, capstone. What are capstone? Capstone are life projects, right? So if you are not able to get, let's say, internship, जो काफी लोगों को नहीं होगी, and let's say आपके पास certifications ही है, the next thing you can do is get in touch with one of your mentors, maybe the faculty members, and try to see if you can get a real time project about any module on SAP. Right, on which let's say for example you're working with a database company and वहाँ पे जाके आप कोई project भी कर सकते हो. That will add more value to your company because these will be the talking points. इसलिए इसको core बोला जाता है. The next is core add-on, right? So the next part is core add-on. Core तो हो गया, but core के ऊपर और कुछ. And what is that? Your job description and company data. If you want to get the best offer on the campus, you should worship the job description. I'm very clear about that. Now, job description clearly gives you the expectations that the company have. अगर आपको किसी कंपनी का JD नहीं मिला है, don't be hesitant to go to the net या Glassdoor या other settings and try to see the job description of similar roles. आराम से मिल जाता है. Job description usually has 3 parts. First part is requirements, second part is skill, and third part is what type of candidate are we looking for. ये 3 parts होते हैं उसके. लिखो, right? कि requirements में, मतलब अभी मत लिखो, तब लिखो. So आपको requirements में आपको note down करना चाहिए. Okay, these are the requirements that they are looking for, right? So it may be a mix of, usually it's a mix of technical and soft skills, right? Then they'll write skills, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, ये वो पावर BI, SQL वगैरह वगैरह, वो भी नोट डाउन करो. एंड व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज योर एटीट्यूड. वो डालते, वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोएक्टिव कैंडिडेट हु कैन स्ट्रेच बियॉन्ड ये ऑल द फैंसी लैंग्वेज ऑफ द प्लैनेट, तो वो उसमें लिखी होती है, बट दे मीन इट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो राइट दैट डाउन एज वेल एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर इंटरव्यू, इनटू योर रेज्यूमे इफ पॉसिबल. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से there's Deloitte that is coming up, and Deloitte is very proud of the fact that they like to pick candidates not necessarily who are smart, but who are smart plus willing to learn. That is the simple funda that they have, because they believe that aap log, you are like blank papers. They just want a person who is willing to learn and improve. Now they have something called as Deloitte University, right? Now let's say if I'm sitting in an interview and I already know that what type of candidate they are looking for, somewhere I will plug that in, that sir, I have one small question. Usually they ask at the end that do you have any question, and I would be like, yes sir, I have one question. That sir, I've seen that, I've heard that Deloitte University is one of the biggest assets that Deloitte has. Is Deloitte University planning to incorporate AI into the SAP modules somewhere soon, or has it already done it? And then comes the answer, and that quickly shows the person sitting at the front, this person understands the attitude that I'm looking for, and you've already ticked a box, right? अभी 2 चीज़ है. एक, सब लोग ये क्वेश्चन मत पूछो. तो आप लोगों के सीनियर के साथ हुआ था, मैंने किसी कंपनी में 2-3 स्टूडेंट्स को कुछ 2-3 क्वेश्चन बताए थे, बिकॉज उनका इंटरव्यू 10-15 मिनट में होने वाला था. सो आई वॉज वॉकिंग एंड आई टोल्ड देम 2 to 3 क्वेश्चंस. 10-15 लोगों ने जाके वही क्वेश्चंस पूछे थे. सो डोंट डू दैट. वन. सेकेंड, मेक श्योर दैट यू ट्रीट दिस वेरी वेल and you understand each and every aspect of the job description. Company data is also equally important, especially their websites, their social media pages. It talks a lot about them. है ना? जैसे let's say for example, if you are planning to meet someone whom you don't know before,
आप में से काफ़ी लोग यू स्टॉक द प्रोफाइल, आई शुड नॉट से स्टॉक बट यू विजिट द प्रोफाइल, राइट? सो आपने देखा होगा ओके ये इंसान यहाँ से वहाँ से. Why don't you do that with the company? Let's say if HCL Tech is coming to hire you and Deloitte is coming to hire you, do you think both companies will hire for the same attitude? I'm saying no. You might be having, आप क्या करो, जो बच्चा Deloitte में select हुआ है ना उसको HCL में बिठाओ, 50% चांस है कि वो नहीं select होगा. Why? Because you might have heard about a beautiful term in HR that they talk about, culture. इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ. So at Bajaj, day one is bank day. So there is a week placement that happens. It's not cyclical, right? तो 7 दिन में कंपनीज आती है, प्लेसमेंट वैसा होता है. So day 0 होता है कंसल्टिंग, day 1 होता है बैंक्स. So बैंक्स में you will be having the GPMC, Goldman Sachs, HSBC वगैरह. Now I'll tell you the stark difference. HSBC versus Standard Chartered. Same pool of students बैठते हैं, but यूजुअली ये पैटर्न देखा है मैंने सालों साल, बिकॉज आई वॉज द प्लेसमेंट कमिटी मेंबर, दैट जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना HSBC में, उनको यहाँ पे वो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड. एंड व्हेन आई वेंट डीप इनटू इट इन द सेकेंड ईयर, आई रियलाइज्ड HSBC इज नोन फॉर अ मोर looking for candidates who are more peaceful, intellectual, easygoing. Standard Chartered want people who are adrenergic. They want people who are on wheels. वो उनको 19-20 चल जाएगा एटीट्यूड में, उनको चाहिए कि उनको दिखना चाहिए फ्लेजम आंखों में. That is the reason. So you should always study the company's website and social media pages very well. Most of the time you get to see something which is not evident in the JD. आप देखो, जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे, लेट्स से यू गो टू देयर सीनियर लीडर्स एंड सी व्हाट दे आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट. यू मे गेट होल्ड ऑफ समथिंग जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के सबके पोस्ट में देखने को मिल रहा है. एंड इफ यू कैन पुट दैट इनटू योर इंटरव्यू आंसर समवेयर समथिंग. आपने सुना होगा ना, काफी लोग अपना इंटरव्यू खुद डिसाइड करते हैं कैसे देना है. वो यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती है. अगर मैं देख रहा हूं कि उनके सारे कंसल्टेंट्स जो है सीनियर कंसल्टेंट्स, दे आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट MLMs, बट एट द सेम टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट ESGs, I should make sure my question revolves around these 2 points somewhere down the line. या फिर मेरे प्रोजेक्ट में, the reverse engineering part, मेरे प्रोजेक्ट में ये 2 पार्ट्स में कहीं ना कहीं डालूं, so that his eyesights go there. And if he asks me तूने इसमें ESG में क्या किया था, I'm ready to answer. And मैं चापले जैसा बाद में बोलने के लिए भी तैयार हूँ that sir, by the way, I've seen that Deloitte is also proactively working in connecting ESG with the MLMs. Right? So that is how you sell your profile. Right? So that is the next myth. कि सिर्फ JD आपको इसलिए नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल JD क्यों यूज करते बताओ? 2 चीजों के लिए, लोकेशन, सर कहाँ पे जॉब मिलेगा, एंड पैकेज कितना मिलेगा. दोज आर द आउटकम्स. यू आर नॉट वरिंग अबाउट द प्रोसेस. वो तो तब मिलेगा जब कन्वर्ट होगा. कन्वर्ट तो कर. राइट? आर यू गेटिंग इट? ओके. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट लेयर. वो जो आप देख रहे हो ऊपर विजिबल लेयर, जो क्रीम है, राइट? सो दैट इज द विजिबल लेयर. अब तक आप लोग मेरे साथ हो? पक्का? आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू गाइज आउट. जरूरत है आपकी, आप हाँ बोलो. so 3 layers are there, right? The visible layer. Now why is it called the visible layer? Because that is something which gives value to the overall dish. है ना? आप जब भी कोई भी डिश खाने जाते हो, जैसे मैं बोल रहा था, आजकल आई बिलीव मोस्ट ऑफ द थिंग हैज बिकम दिस. सारी चीजें खाने की, मुझे तो ये लगता है खाने की क्या, कोई भी चीजें यही हुई है. जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज अ वेरी सीनियर सेल्स लीडर, ही वर्क्स फॉर मर्सिडीज, राइट? वो मुझे बता रहा था कि अनिकेत, यू वॉन्ट बिलीव, देर आर पीपल आई सी व्हेन आई वर्क विद डीलर्स हु परचेस कार्स, और उसका 20-30% क्या होता है मालूम है? वो जो रोप अनवीलिंग एक्टिविटी जो आजकल करते हैं, ओनली फॉर दैट. दे वांट टू शो दैट मर्सिडीज स्टार की देखो क्या है. उसके बाद 3-4 days बाद इट इज लाइक ओके. सो दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई मार्क दिस लेयर बाय 3 C's. नाउ व्हाट इज द इल्यूजन? मैं इल्यूजन के बारे में बात करूंगा. द इल्यूजन इज, मैं SAP का टॉपर हूं, आई विल क्रैक इट. That is your biggest illusion.
The illusion is with SAP knowledge, it is important, no doubt. वो तो मैंने starting में ही बोला है. But you need these 3 C's. And what are those 3 C's? A, your communication should be master class, right? Because you will be applying to roles which are termed as consultants, analysts. Consultant is typically classified as a client-facing role or a client interactive role. How do you expect someone to pick you up if you're not good in communicating? अभी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करते बैठूंगा, बट कम्युनिकेशन इज नॉट नेसेसरीली इंग्लिश स्पीकिंग. दैट इज अ वेरी स्मॉल फैसेट ऑफ कम्युनिकेशन. देर आर सो मेनी एंगल्स टू कम्युनिकेशन. सो अगर आप SAP के अलावा अगर दूसरी कोई चीज यहां से मास्टर करके जाना चाहोगे, मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन कम्युनिकेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? द सेकेंड पार्ट इज कॉन्फिडेंस. Communication, I've seen some people have good communication, but they are underconfident. Now, what do I mean by confidence? Confidence का simple मतलब है, do I trust my preparation? वो मेरे चेहरे से, मेरे चलने से, मेरे बात करने से, and मेरे आंसर से दिखना चाहिए. Okay, so confidence is the second jewel, and third is coherence. What is coherence? Coherence is logic. Whenever you talk about a particular thing, is it logical? Most of the time, these consulting roles, the questions are asked in an inferential manner. Direct question नहीं पूछेंगे. वो बोलेंगे कि imagine you are working for a client and suddenly there is problem with the inventory management cycle. What are 2 to 3 things that, what will you do? 2 to 3, what will you do? And suddenly the student tries to be a master consultant, because मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडिया में कंसल्टेंट की कमी नहीं है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ कंसल्टेंट्स, है ना? आप देखो हर चौराहे में वो चाचा बैठे रहते हैं. Especially if you come from a tier 2, tier 3 town, आपको अच्छे से पता होगा. There is a कट्टा, वो चौरा जिसपे वो चाचा बैठे रहते हैं, है ना? अरे तुम MBA नहीं कर रहे होगा, मैंने सुना कुछ PG कुछ कर रहे हो. हमारे बबलू ने तो MBA किया. अरे तेरे बबलू ने MBA किया गांव के ऐसे कॉलेज में जहाँ पे टीचर को कुछ ये नहीं है. मैं कहाँ से PGDM कर रहा हूँ? सो इंडिया में कंसल्टेंट्स की कमी नहीं है, सलाह देने वालों की, राइट? सो आप भी वो मत बन जाना. तो वहां पे इमीडिएटली जैसे बोलते हो दैट लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स कम अप, सर व्हाट विल डू इज विल यूज AI, विल यूज चैट GPT, विल यूज फलाना ढिमका. तेरे को कंसल्टेंट नहीं बनाया है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट बॉस लॉजिक. सर गिव मी अ मिनट, लेट मी थिंक. सर अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 2 reasons because of which I believe inventory management could have taken a hit. First, improper supply demand planning. That could be one of the reasons. And second is improper, let's say, sales movement, the secondary sales. Sir, could you please help me understand which factor is currently causing the problem? Let's say the person says that there is a demand supply mismatch. Then you can say, okay sir, so my solution would be to sit with the procurement and purchase department and discuss the ways to plan the supply gap for the next 6 months. I think by that way we will solve the problem in the next 3 to 6 months. That is what they are expecting, right? So typically coherence is logic. How do you apply logic? And hence case studies are the basis when it comes to management education, right? So that is the visible layer. Now we are coming at the end part of the thing, the eye catcher, right? जो आप ऊपर देख रहे हो, वो जो होता है, आपने देखा है काफ़ी सू शेफ्स वो आते हैं कभी कभी आपके टेबल पे एंड वो इस तरीके से वो कुछ करते हैं, राइट? सो आई कैचर जो है वो क्यों होता है? बिकॉज most of you guys would be having identical profiles. In case आपने पहले अगर बहुत ज़्यादा आपका वर्क एक्स वगैरह है, most of you would be having identical profiles. आप प्रोजेक्ट्स करोगे, आप इंटर्नशिप्स करोगे, आप सोशल प्रोजेक्ट्स करोगे. How do you differentiate yourself? The differentiation will come in form of this. I still remember MBBs आपको पता है, McKinsey, Bain, BCG, the top 3 consulting firms. So MBB का एक रूल है, अगर MBB में आगे चल के किसे जाना है, याद रखना आपके रेज्यूमे में उनकी भाषा है ये, राइट? जैसे आप योलो वगैरह बोलते हो वैसे MBB की भाषा है. यू शुड हैव स्पाइक्स इन योर रेज्यूमे. व्हाट डू आई मीन बाय स्पाइक्स? वो कभी भी नेसेसरली बैच टॉपर को नहीं लेंगे. दे वांट अ पर्सन हु हैज जैसे ECG के जैसे मल्टीपल लेयर्स टू द प्रोफाइल. सो यूजुअली आप देखोगे वहां पे जो बच्चे होते हैं 10, 12 ग्रेजुएशन, वेरी गुड ग्रेड्स, नेशनल लेवल, लेट्स से रणजी प्लेयर, मिस इंडिया फाइनलिस्ट, सच टाइप ऑफ थिंग्स. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस आप जाके क्रिकेट खेलो या मिस इंडिया बनो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कैन यू क्रिएट दोज एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड को करिकुलर्स इन दिस नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम?
एंड उसमें क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग, द नेक्स्ट इल्यूजन थ्रू दिस दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, most of the students think, nahi, I don't need to do this. I think SAP project and my SAP sessions are okay. Those are not okay. Balance is the essence of a good candidate. ये याद रखना. आयुर्वेदा में एक लाइन है, वो लाइन ये बोलती है अतिस्य अस्य विषम. उसका मतलब ये है कोई भी चीज इन एक्सेस पॉइजन बन जाती है. तो वैसे ही होता है, आपको हर चीज बैलेंस करना चाहिए. Right? So this is very important. So what are the components of the extracurricular and co-curricular activity जो आप अभी भी कर सकते हो? First, make sure that you are part of some or the other committee at your college. I understand कि सब नहीं कर पाओगे, but India is a land of competition. So आप लोगों को make sure करना पड़ेगा that you get into some or the other committee because it gives you exposure of team management and leadership, especially considering that most of you are freshers. Right? So that is very important. Don't shy away from participating in committees. I've seen लोग usually ये बोलते हैं कि नहीं सर मुझे पढ़ाई करनी है, ये करनी है. कमिटी में थोड़ी तुझे दिन रात बैठना है. Right? So you should make sure you're a part of that. Second, enroll yourself in clubs. By clubs, I don't mean to say the pubs वाले clubs. Right? By clubs, I mean the interactive clubs. Something like maybe the Toastmasters, something like the Rotaract learning clubs. So enroll yourself in that because that will give you a very good confidence element and communication element. Communication, unfortunately, मैंने देखा हुआ है, लोग आए दिन when I meet them, they ask me कि sir how do I improve my communication? उन्हें कोई सलाह देता है कि आप बुक्स पढ़ो, उन्हें कोई सलाह देता है कि आप टीवी सीरीज देखो. That is not the way communication improves. आपको जब तक ये नहीं समझता है कि communication is a language and language की पहली कदम क्या होता है? Getting comfortable with the language, being confident with language. आपने हार्दिक पांड्या को देखा है क्या? हार्दिक पांड्या पहले कैसे इंग्लिश बोलता था, पहले इंग्लिश छोड़ो कैसे बोलता था देखा, एंड अभी उसका इंग्लिश देखो आप कैसे, कॉन्फिडेंस. सो यू शुड मेक श्योर कि आप क्लब्स के पार्ट हो. कॉम्पिटिशंस, आई डोंट नो व्हाई बट द वेव हैज फेडेड. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू सी not only in tier 1 institutes but tier 2 वगैरह में भी मैं देखता था, students used to participate in corporate competitions, students used to participate in college competitions, but now that has faded away. आप लोगों के पास आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हुए, पहले तो हमें ढूंढ के पार्टिसिपेट करना पड़ता था. प्लीज पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस. यू हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अनस्टॉप. है ना, आप में से काफी लोगों ने ये नाम सुना होगा ग्रेजुएशन के टाइम, नहीं सुना है, UNSTOP. सो अनस्टॉप इज अ प्लेटफॉर्म जिस पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशंस लाइंड अप होते हैं. केस स्टडी कॉम्पिटिशंस, क्विज कॉम्पिटिशंस, ऐसे कॉम्पिटिशंस, पोस्टर कॉम्पिटिशंस, and if possible try to do corporate competitions. What do I mean by corporate competitions? Most of the time companies will put their problem statement and you're expected to work on that. Now there are 3 advantages that you get because of corporate competitions. Point number 1, जैसे अभी बीच में लॉरियल का लाइव था, HUL वगैरह का लाइव था, राइट? सो पॉइंट नंबर 1, यू गेट अ रेडीमेड MNC का नाम ऑन योर रेज्यूमे. हारो जीतो जाने दो, गोली मारो. Even if you get out in the first round, you get to display that as a badge ki guy, look at this. I am a campus representative for L'Oreal Falana competition. Second, in case you move ahead, you had a chance to interact and network with the other college students, and most of the college students in such competitions are tier 1. So you get to see what type of presentations they do, you get to see their reasoning, analytics, and उस बहाने थोड़ा networking भी हो जाता है. The world is very small, you never know आपके कौन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आगे चल के आने वाला है. And third, by that way you get to learn business in the closest practical possible way, because most of them are case studies. So start doing them. Then social work, I think IIBM Institute does a fine work involving students into the CSR projects. So I think उसके बारे में आप लोग lucky हो कि you already have the college doing that for you. And next is freelancing. Not compulsory for everyone, but in case you can show some creative part of yours in the form of freelancing, someone could be a content writer, someone could be an Instagram based influencer, right? It's good to have. आजकल के टाइम में वो चाहिए. आपको साहिबा बाली पता है? Right? So साहिबा बाली, she is now a full-time influencer, but she earlier used to be a product manager. बट उसने इतना अच्छा अपना सोशल मीडिया रीच बुला लिया था दैट नाउ लिटरली ICC टूर्नामेंट्स वगैरह में भी वो करती है, एंड नाउ शी हैज बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड एन एक्ट्रेस. तो गर्ल्स नेवर. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ऐड अंडर योर
extracurricular and co-curricular part. And the last piece, that is, sir, I have time, right? So the last piece is the holding base. सब चीज पे हमारा ध्यान गया, आपने देखा, बट उस थाली पे हमारा ध्यान नहीं गया. The plate which is holding that cup, and in case you observe it minutely, which contains those cocoa beans, those coffee beans, which when crushed is what the main constituent of coffee is. तो ये जो holding base है, ये है आपके पास होने वाला content. Because all of you might be aware that be it group discussion, be it interviews, you would need content to speak. बोलेगा क्या? Let's say there is a topic wherein they say that is India heading towards a looming economic crisis. What will you speak if you don't know the content? तो आप लोग आज से क्या स्टार्ट करोगे? ये स्टार्ट करोगे. So prepare a separate notebook or a digital copy. फोन पे कर सकते हो, लैपटॉप जो आपको, या नोटबुक, and start jotting down important general awareness points. जो important events हो रहे हैं, it may be geopolitical, it may have to do with economics, it may have to do with scams. Start noting them down, because this is what you will be needing once you sit for the group discussions and interviews. Because अगर आपको लग रहा होगा इंटरव्यू में सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, you are mistaken, right? So and GD में तो you'll need it, क्योंकि GD आपको मालूम है, आपको क्या लगता है GD क्रैक करना डिफिकल्ट है या PI? GD. Because the success rate in GD, if you compare, there is, I don't remember वो रिपोर्ट कौन सा है, बट मैंने वो पढ़ा था. The success rate of MBA schools in India in cracking GD is 28%. मतलब अगर 100 लोग बैठते तो 28 ही लोग अगले राउंड में जाते हैं. On the other hand, the conversion rate of PI in India is 62%, almost 3 times, 2.5 times, right? So उस तरीके से आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जनरल अवेयरनेस लाइंड अप हो, फंक्शनल अवेयरनेस. यू शुड मेक श्योर कि जो कंसेप्ट्स है वो हैंडी हो. There is a difference between you as a undergrad student doing GD versus you as a PGD ERP student doing GD. फर्क है या नहीं? अगर आप BBA में थे तब जैसा GD करते थे, अभी भी वैसा ही करोगे तो क्या फर्क? Can you bring in functional SAP points in your GD? That is what marks. या फिर general management concepts. And lastly, stats, facts, figure. तो आपके मुंह जुबानी होनी चाहिए. जैसे मैं आपको एक नमूना देता हूँ. लेट्स से एक जीडी चल रहा है, कोई भी जीडी है, एंड ये जो मैंने अभी बोला कि इज इंडिया लूमिंग हेडिंग टुवर्ड्स अ लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने स्टैट्स फैक्ट्स की एजे सर आए थे, उन्होंने बोला था, मैंने लिख के रखा है. और अगर आप स्मार्ट हो, इफ़ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, यू कैन यूज द स्टैट्स एनी वे. अभी आप इमेजिन करो कि यूजुअली इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं बच्चे. हेलो गाइज, सो वी हैव बीन गिवन अ वेरी गुड टॉपिक and that topic is India heading towards a ye? No, I don't believe we are heading towards a ye, right? So this is something which will be more suitable for a BCom BBA guy vis-a-vis someone saying, okay, Jai Hind guys, so for an economy like India which is standing tall at 145 crore of population and pegging towards a $4 trillion economy, wherein we are seeing the last repo rate forecast of 4.5%, clearly tells the difference that India is clearly heading for the last 10 years. The last decade has clearly seen a CPI consumer price inflation rise about 3% vis-a-vis the US price inflation of 22%, signals that India is not clearly heading towards an economic gloom. Now what remains to be seen are the factors that we need to consider. First, the public policies that the government is planning to come. Second, the population behavior that is about to happen. And third, the FDI route that the companies are planning to take with India in this circumstance. I open the floor for discussion. So you can clearly see that creates a different contrast merely by using 2 to 3 stats. मैंने जो stats बताए ऐसे एक है जो आपको पता नहीं है. Population आपको पता है, इकोनॉमी आपको पता है, कुछ 2-3 मैंने CPI वगैरह बताए, वो आप बना सकते हो. ये मैंने कॉमन बताया. आप इमेजिन करो इफ यू कैन हैव स्पेसिफिक पॉइंटर्स, द वैल्यू दैट यू कैन ऐड इन योर GD, और वहां से कॉन्फिडेंस आता है. एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, स्पीकर का कॉन्फिडेंस कम विद प्रिपरेशन. इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इट्स लेस लाइकली कि आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट? सो डू दैट. सो वी आर कमिंग एट द फैग एंड ऑफ माई सेशन. तो मेरा एक सवाल है आपसे कि वो जो कॉफी मैंने पी अगर इस मग्गा में आपको दी जाती तो पहले इसको देख के डर लगता है, वो जेल वाला लगता है ना, कैदी वाला, कैदी नंबर 420 ठक. सो हार्डली मुझे लगता है आप में से कोई होगा, अनलेस एंड अनटिल वो मिनिमलिस्ट नहीं है,
या जिंदगी से बहुत परेशान नहीं हुआ है, who would be willing to consume coffee in this mug, right? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक बहुत बड़ा सत्य मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, वो है दैट यू नीड टू हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी टू गेट इन टू एन MNC. ये मुझसे लिख के ले लो आप, राइट? इफ यू डू नॉट हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी, यू माइट बी डूइंग एवरी एंड ईच थिंग. आप शायद वो ब्लैक कलर की वो डॉल बना के उसको पिन भी मारोगे ना, तो भी आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट? सो यू शुड मेक श्योर दैट दीज अस्त्रास, दैट इज टूल्स ऑफ प्लेजेंट पर्सनैलिटी है. मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं. आई हैव सीन एज अ स्टूडेंट दे डू नॉट हैव होल्ड ओवर देयर फेशियल एक्सप्रेशंस. इट शुड बी एट मेस्ट न्यूट्रल या एज पर द सिचुएशन, राइट? जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग कॉरिडोर्स में आते जाते व्हेन दे से जय हिंद, राइट? जय हिंद इज सच अ ब्यूटिफुल salutation that you guys give. So most of the people, since वो बेचारे they are not living that salutation, it is like वो चलते हुए जय हिंद सर, जय हिंद सर, तेरे चेहरे पे वो एनर्जी नहीं लग रही है, राइट? सो फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप जब जाते हो और विश करते हो उनको कि हेलो सर, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, दैट शुड बी एविडेंट. सेकेंड इज नॉन क्लम्जीनेस. मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कभी बाद में बता दूंगा. वॉइस यूजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिच, टोन, ग्रेविटी. आपको मालूम है वॉइस किसका अच्छा बोला जाता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगर्स का वॉइस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फिर उस हिसाब से तो मैं कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं करूंगा, राइट? बट PTG, पिच, टोन, ग्रेविटी, आपका पिच शुड बी सफिशिएंटली हाई. उसका मतलब ये है कि सामने वाला किस अंतर पे बैठा है, उस डिसाइड से आपके ब्रेन ने डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कितने जोर से बोलना है या कितना धीरे बोलना है, एंड कितने क्लैरिटी से बोलना है. सो दैट इज पिच. नेक्स्ट इज टोन. आप किस पैटर्न में आवाज को ऊपर नीचे करा रहे हो, दैट इज द टोन. एंड ग्रेविटी, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू एम्फसाइज on the important words. अभी आपने देखा होगा मैंने emphasize नहीं बोला, मैंने emphasize बोला. So how do you create gravity out of your words? Because these are the areas जिसके बेसिस पे आपका voice usage पता चलता है. ये है थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेट. मैं आपको रेडीमेड चीजें दे रहा हूँ. दिस इज बेस्ड अपॉन माई 4 to 5 years ऑफ रिसर्च में जो मैंने किया है लोगों के साथ, राइट? नेक्स्ट इज सोशल वार्मथ. कैन यू मेक द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट कंफर्टेबल? आप बोलोगे सर हम क्यों उनको कंफर्टेबल बताए, वो रिक्रूटर है. यही तो आपकी गलतफहमी है. Let's say she is the recruiter. Most of the people, they just go and stand and they say, vis-a-vis, if I'm observing that she is a friendly lady, of course observing, randomly nahi, I'm observing, and if she's talking to me, I should reply back properly. She's saying, hey, how are you doing? Acha, you might be tired, right? अगर मुझे पता चला है, my next retort should be, no ma'am, absolutely fine. Ma'am, in fact, I think you have been conducting a lot of interviews. It would have been an exhausting day for you. And she would be like, नहीं. But आप बोलोगे सर इतना बोलना होता है? सो दैट इज सोशल वार्मथ. आप इमेजिन करो, आप जब किसी पार्टी में जाते हो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ पे जाके बैठना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होती है. आप देखो पार्टी, वो बोलते हैं ना, ही इज द हार्ट ऑफ द पार्टी. वो कौन इंसान होता है जो सबको अपना बना सके, है ना? सो दैट इज सोशल वार्मथ. यू विल नेवर सी समवन टॉकिंग अबाउट ऐसा इंसान जो सिर्फ खड़ा है, बट कोई इंसान जो जाके मिल रहा है, अरे आपने खाना खा लिया, ओके चलो मैं चल रहा हूं. सो दैट इज द सोशल वार्मथ दैट समवन इज एक्सपेक्टिंग. उस पर और डिटेल में बात करेंगे. ग्रूमिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो अबाउट दैट. आई कॉन्टैक्ट वेरी एसेंशियल. इट इज सेड दैट द आई कॉन्टैक्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 6 to 2. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 6 to 2? इट शुड बी 6 minutes ऑफ कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप फॉर 2 minutes, एंड देन अगेन 2 minutes ऑफ मनूवर आई कॉन्टैक्ट. मतलब यहाँ वहां फिर से वापस 6 minute. सो 6 मैं देख रहा हूं, देन आई ब्रेक, देन 2 एंड वापस 6, right? So that should be the eye contact. 60% of the time you should be having an eye contact with the person in front of you. काफी जैसे बीच में I don't remember where I was. कोई तो मुंबई के कॉलेज में था. वहाँ पे एक स्टूडेंट आके मुझे जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है सर. सो ही सेज कि सर बट मेरा एक इंटरव्यू में ऐसे हुआ दैट देयर वाज अ लेडी इंटरव्यूअर हु वाज इंटरव्यूइंग मी. सो मैं देख ही नहीं पाया एंड मुझे एक रिमार्क मिला एंड में दैट व्हाई वर यू सो मच अंडर कॉन्फिडेंट. सर मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं था, बट मुझे लगा कि शी वोंट फील गुड अगर मैं ये करूँ. मैंने बोला तुझे शक्ति कपूर थोड़ी बनना है, तुझे एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट देना है. सो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी एसेंशियल, राइट? द नेक्स्ट इज नॉन टायर्ड लुक. ये बहुत कॉमन सी बात है कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस, आपने MS धोनी मूवी देखी है? हाँ, तो आप में से जो लोग फिटनेस में हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज सिंस हार्मोन लेवल्स अच्छे होते हैं, चेहरे पे होता है. सम ऑफ यू माइट बी ब्लेस्ड. देखा, हम में से कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम, बट कुछ लोग होते हैं ब्लेस्ड जो कैसे भी हो उनका चेहरा एकदम फ्रेश लगता है,
राइट, दैट इज द ट्रुथ, है ना. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश भी हो तो खुश नहीं लगते, राइट. तो सर मेरा प्लेसमेंट हो गया, अरे प्लेसमेंट हो गया सर, हाँ सर, मैं खुश भी ऐसा ही होता हूँ. सो अगर आप उनमें से हो, आपने अगर MS धोनी मूवी देखी है, उसका जो पहला इंटरव्यू देने जाता है, सो यू माइट हैव सीन ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ही डज सम मसल एक्सरसाइजेस ऑफ स्ट्रेचिंग अप. तो आप वो एक्सरसाइजेस करने लोगो मिरर में देख के, सो दैट यू कैन कंट्रोल योर मसल एक्शन. बिकॉज ये आपको पता होगा, आपका जो ये फेशियल मसल होता है, ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों होता है ना. काफी बार आपने देखा होगा, कभी वो फ्लैंक होता है, देखो आपको पता भी नहीं चलता होगा. तो यू कैन कंट्रोल दैट. एकोमोडेटिंग, ये मैं अभी नहीं बोलूंगा बिकॉज इट इज वेरी रिस्की टू टॉक अबाउट नाउ. इट नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस. लाइट हार्टेड, अगर कोई जोक चल रहा है तो आप स्माइल कर सकते हो हल्के से, लाफ नहीं. मतलब मुझे कभी कभी डर लगता है जब मैं बच्चों को चीज बताता हूँ, बिकॉज दे टेक इट टू द साउथ पोल, राइट. जैसे मैंने बोला कि यू शुड स्माइल, सो दे वुड बी लाइक, वहां पे उन्होंने बोला अच्छा तो सुबह पास्ता खा के आए हो, बट पास्ता नहीं खाना चाहिए, राइट. हाँ बराबर नहीं खाना, राइट. सो इट शुड बी लाइट हार्टेड विद इन द लिमिट, बाउंड्री एंड सिंसियरिटी. ये जो बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इंटरव्यू क्रैक करूंगा, यू आर मिस्टेकन. वो जो सामने बैठा हुआ इंसान है ना, उसको 10, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है. आप किस मोड में आंसर दे रहे हो, बेस्ड ऑन दैट ही कैन इमीडिएटली मेकअप if you are really giving the genuine answer or is it something which has been manufactured in your mental factory, right. So be very sincere. Now what are the steps in process, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट एक बेसिक है इसलिए बता दूं. सबसे पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, इसलिए गेट वेरी सीरियस विद रेज्यूमे. सेकंड इज एप्टीट्यूड राउंड. टिपिकली एप्टीट्यूड के साथ में भी वर्सेंट वगैरह लैंग्वेज एसेसिबिलिटी टेस्ट वो भी होते हैं. सो दैट इज द एप्टीट्यूड राउंड. देन यू हैव ग्रुप डिस्कशन. अगेन नॉट नेसेसरी हर कंपनी में GD होगा, बट या मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल हैव इट. एंड देन फाइनली पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू है, इसका मतलब ये नहीं एक ही होगा, 2 राउंड भी हो सकते हैं, 3 राउंड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, राइट. आई एम गिविंग यू एट द एंड अ बिटर पील टू स्वॉलो, एंड दैट पिल इज, जो आपको बहुत बाद में पता चलेगी और उस बहाने आपको मेरी याद आएगी, बट एक साथ याद मत दिलाना. आई शुड नॉट गेट हिकअप्स देयर, राइट. दैट इज persona beats IQ in campus placements. I would love for someone to debate with me. नहीं हो सकता. इसका मतलब ये नहीं कि आप में IQ नहीं होना चाहिए. What I'm trying to say is, not everything in solo works, but you should make sure that you are working heavily on your persona. और उसके कुछ चीज़ें मैंने आपको 10 अस्त्राज में बताए. मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ. आप अगर उतना नहीं कर सको जो मैं अगले स्लाइड पे दिखाने वाला हूँ, इफ यू कैन डू दैट, यू कैन थैंक मी लेटर. आप डबल या ट्रिपल से आपका पर्सोना इंप्रूव करोगे. एंड दैट शॉर्टकट इज फेलास IB+. दैट इज एन एक्रोनिम जो मैंने बनाया हुआ है. F स्टैंड्स फॉर, अभी इसको ध्यान से सुनो, आप बाद में लिख लेना, लगे पहले सुनो कि इसका अप्रोच क्या है. तो आपका पहला एनकाउंटर होता है, लेट्स से यू गेट इनटू द इंटरव्यू रूम और यू गेट इनटू द GD रूम. आपको लगता है कि वो आपको तब देखेगा जब वो बैठ रहा है. नहीं, subconsciously he is observing the way you are walking and the way you are first interacting with him. I interacted with her first. How is my facial expression? So practice करना आज से स्टार्ट कर दो. जब मैं किसी को भी, और आपको क्या लगता है, ऐसे होता है काफी लोग बोलते हैं नहीं सर मैं PI में कर लूंगा. तेरे यहाँ पे क्या स्विच है क्या कि वहां पे जाएगा PI मोड ऑन? वैसा नहीं होता है. यू विल हैव टू डू इट डे इन डे आउट. जब भी आपको कोई मिलता है, whenever you wish someone, there should be that energy that comes up on your face. Hey, hello, hi, good morning. So आप प्रैक्टिस करने लग जाओ इन योर ओन वे. डोंट ट्राई टू कॉपी समवन. सबसे डेंजर लोग कौन होते हैं मालूम है? सोबो के ट्रेनर्स. साउथ बॉम्बे के जो ट्रेनर्स होते हैं ना, उनकी मेरे कंप्लेन है उनसे. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग सोबो हो जाए. ऑल ऑफ अस आर यूनिक, राइट. यू माइट हैव सीन दिस सोबो गाइस. यहाँ पे भी कोई होगा, डोंट गेट ऑफेंडेड, राइट. मैं काफी टाइम मैंने सोबो में ही बिताया और मेरे काफी फ्रेंड्स वैसे, बट आई हैव सीन देम, क्योंकि ट्रेनर्स यूजुअली वहां से होते हैं, right. So they'll be like, hey, hello, good morning everyone. So we would be learning about, जो अनन्या पांडे की टोन है. I know, you know, I can touch the tip of my nose with my tongue. तो वो वाला जो टोन है, it is not necessary कि आप स्माइल वैसे ही करो. जैसे ये जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग कोच होते हैं ना, जो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे, वो आपको दिखाते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा उठना, वैसा कुछ नहीं होता है. बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. आप प्रैक्टिस करके देखो कि आप कैसे मुस्कुराते हो तो सही लगते हो या अजीब लगते हो. नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट. जैसे मैंने बोला 6-2-2, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे. जैसे मैं अगर सेशन देख रहा हूँ, लेट्स से आई एम टॉकिंग टू हर, दैट शुड बी माय प्रैक्टिस कि ओके लेट मी डू इट 6-2-2.
नेक्स्ट इज लिसनिंग. ये अंडररेटेड स्किल है स्टूडेंट्स के पार्ट पे. स्टूडेंट्स ओनली वांट टू जंप टू गिव द आंसर. Hear him out. He maybe wants to convey something more. Next is acknowledgement. Let's say she asked me a question and the question has ended. How do I acknowledge it without saying a word? Yes, ma'am. I get that question. Ma'am, I believe that's a very challenging question to answer. But could you give me maybe a few seconds to think? Acknowledgement. I'm trying to bridge the gap. वरना क्या होता है? Awkward silence. बच्चों को साइलेंस काटने को दौड़ता है. बाप रे, अगर अभी नहीं बोलूंगा तो रूम शांत हो गई है. वैसा नहीं होता है. द मोर यू टेक टाइम, द मोर इट शोज डोमिनेशन. इनफैक्ट सामने वाले को थोड़ी देर बाद लगना चाहिए मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूं या मेरा इंटरव्यू ले रहा है. दैट शुड बी द गेम यू शुड प्ले. नेक्स्ट इज स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स हियर कम्स कम्युनिकेशन. आपकी वोकैबुलरी, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे सोचते हो क्या वगैरह. इम्प्रॉम्प्टू इज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड अजर्व फ्रॉम एनीवेयर. आपने प्रिपेयर्ड भी नहीं किया होगा तो कैन यू थिंक ऑन योर फीट. सो स्टार्ट डूइंग 30 सेकेंड्स ड्रिल प्रैक्टिस. क्या करने का? कोई भी टॉपिक लेने का रैंडम, टेक इट बेसिक टॉपिक. मैं तो बोलता हूँ करंट अफेयर्स भी मत लो एंड स्टार्ट टॉकिंग ऑन इट फॉर हाफ अ मिनट और अ मिनट. स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, राइट. यूज द पावर ऑफ 3. अभी पावर ऑफ 3 क्या है आप पढ़ लेना बाद में. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, राइट. इस पे भी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब आप बात करते हो तो आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होंगे, आपके आँखें कैसे चलेंगे, आपके नॉडिंग कैसा होगा. सो एवरी स्मॉल थिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ. इफ यू टेक केयर ऑफ फेलस IB प्लस एंड इफ यू प्रैक्टिस दिस फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, आई कैन गिव इट कि दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू इम्प्रूव योर पर्सोना इन 3 to 6 months. आप कितना भी पैसा भर के बाहर लगा लो, नथिंग कैन बीट दैट, राइट. सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. आपको लिखना है तो लिख लो, लगे तो आई विल वेट फॉर हाफ अ मिनट. दस 20 लोग लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी के लोग कैन टेक इट फ्रॉम देम. एंड द लास्ट फार्मूला ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको आपके रेज्यूमे तगड़े बनाने के लिए मदद में करेगा. तो आपको बस 1 2 3 4 5 6 को फॉलो करना है. और वो क्या है? यू शुड मेक श्योर यू हैव 1 गुड इंटर्नशिप, 2 गुड एकेडमिक पॉइंट्स. एंड व्हाट डू आई मीन बाय 2 गुड एकेडमिक पॉइंट्स? दैट मीन्स कि आपके कुछ ना कुछ, मे बी पोस्टर मेकिंग या कुछ SAP का कंपटीशन हुआ, यहाँ पे आपके मार्केटिंग क्लब होता है, फाइनेंस क्लब होता है, उसमें आपने कुछ जीता, समथिंग एकेडमिक पॉइंट्स. प्रोजेक्ट्स, 3 projects. It should be a mix of study projects and live projects. 4 extra curricular points. आपके ग्रेजुएशन के टाइम भी चलेंगे, right? This includes even the things that you have done during your graduation या even 11th 12th. Ideally rule तो ये बोलता है 5 साल के पुरानी चीज नहीं होनी चाहिए, but you can put it, right? 5 competitions. So this is something in your hand. Open, unstop, go and start doing competitions. You should have 5 competition in the next 4 to 5 months before you sit for the placements, and 6 certifications. And when I say certifications, meaningful certifications. Are you getting it? So 1 internship, 2 academic points, anything जो भी पढ़ाई related या लिखाई related कुछ भी चलेगा, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ हो वो भी चलेगा. 3 प्रोजेक्ट्स आपको करने, EC पॉइंट्स, कॉम्पिटिशंस एंड सर्टिफिकेशंस, राइट. सो दीज आर 1 2 3 4 5 6. सो दैट ब्रिंग्स मी एट द कल्मिनेशन ऑफ माई सेशन. आई होप आपको मेरी कॉफ़ी का स्वाद मिल गया है. You got it? Fine. So I think I've concluded on time. तो कुछ अगर आपके genuine questions है, you can shoot them at me. I'll be more than happy to answer. Yes, sir. Jain sir, first of all, it was really a pleasure listening to you throughout the session, and I hope my question doesn't sound a bit controversial, but does JBIMS have a executive MBA program? I won't say it's an executive MBA program. It's a part-time program that they do for 3 years. Okay, Yeah. thank you sir. Any more questions? Yes, sir. बताइए. जय. Sorry, I didn't get it. Does being a polymath helps
in oral development of a student, or Yes, it helps. It helps. does it create dominance? Not domination, it depends on the way you utilize it. Okay. Yeah. Thank you. Yes, ma'am. Taking leverage of that chair. Yeah. Okay, no problem. Yeah, I'm Jai just Hind kidding. sir, myself Anjali Gabriel. I just wanted to ask, like, though you are an alumnus of JBIMS, it's like one of my favorite colleges. It is called the CEO Factory. So I just want to know from you, like, even I aspire to be there someday. I hope so. So I just wanted to know the career trajectory for that, and like I want to take my specialization in finance. So like I just want a little guidance, like how So just to clarify, career trajectory, as in I didn't get you. for this position and in finance stream. Okay, so Yeah. your question is that you want to reach maybe a senior Yeah, level in yes. finance, the career trajectory. Okay, so I'll answer her question and maybe I'll address the crowd so that in case they also have it. So her question is that, let's say she wants to reach the pinnacle of whatever finance domain that she prefers to choose. How do you get there? Don't think much about it as of now. It may sound a bit mundane coming from me, but the thing lies in that the very first thing is utilizing the first 5 years very well. So it is said that your career is divided into 3 parts. The first 10 years is majorly about learning and implementation. Okay. The second 10 years is about mastering execution. And the last 10 to 15 years is about decision making. Right? So the first 5 to 10 years, you should be ready to learn as much as possible, because that is the year in which even if you commit mistakes, those mistakes are discounted. Okay. So I've seen usually, since most of you, in fact all of you are Gen Zs, right? तो एक टेंडेंसी आ गई आजकल Gen Z work life balance. Yes, sir. So it's good to have work life balance, even I am for it, but इतना भी life work balance ना हो कि उसमें work ही ना हो. So I was talking to some of my friends who work in corporates. They said, यार आजकल interns आते हैं और वो clearly मुंह पे बोलते हैं. Let's say he was talking, one of my Accenture strategy friend, he said, yes sir, एक intern आया है and he's from a good college. That person was said कि यार एक ना प्रोजेक्ट का डिलीवरी है, आज ना हम सब लोग रुक रहे हैं थोड़ा 8-9 बजे तक, लेट्स डू इट आज, नॉट एवरी डे. नो सर, आई हैव माय टेनिस मैच टू प्ले, आई कैन नॉट, ये वो चला गया वो. This is unprofessionalism. Yeah, so ultimately you should be ready to give your 120%. That is one. Second is upskilling never stops, right? So you should make sure that you upskill in a very better way. Later on, maybe going ahead, you could do an executive MBA from maybe the top 10s of the world. That will help you in a more better way. And I believe networking is something which is taken for granted. You should be really good in networking, right? मतलब मैंने देखा है कि 2 लोग हैं CEO पोजीशन के लिए, बट अगर एक प्रेफर हुआ है, the reason is because he is pursued to be a better leader. He may not be a better leader, but he is pursued to be a better leader. Because एक कहावत है, आपको मालूम है ना, जो दिखता है वही बिकता है, right? And that is true. So how do you make sure that you create a brand persona? आजकल ये बहुत चल रहा है that you are creating personal brands. So आपको खुद का एक ब्रांड बनाते आना चाहिए. Let's say I walk into this hall, there should be some things that I want to discuss that the crowd should discuss. And that comes with work experience, that comes with your personality, that comes with your SWOT analysis, that what are your strengths. Just let's say communication is one of your strengths. Yes, let's say interacting with people is one of your strengths. Yes. Can you build the technical forte on it and use that as a vehicle? Right? So these are 3 to 4 things. All of you can read this book called as Catalyst, right? CATALYST. इसने क्वेश्चन पूछा अंजलि ने, इसलिए आई एम टेलिंग अबाउट दिस. कैटलिस्ट इज अ ब्यूटिफुल बुक. इट हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द एक्स CEOs ऑफ Mondelez, erstwhile Cadbury. तो अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, बट ब्यूटिफुल बुक. इट इज रिटन फॉर यू गाइज ओनली. जो लोग अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कैटलिस्ट है. उसमें अंजलि यू विल गेट ऑल द फॉर्मूली. मेरे कुछ का इसकी भी जरूरत नहीं है. सो ही हैज गिवन फॉर्मूली, ही हैज गिवन गाइडलाइंस based upon his experience reaching till the ladder of CEO. How should you build your career? If you read that book, purchase that book and have it with you. 5 साल पढ़ते रहना, हर साल एक बार पढ़ते रहना, and you will get to have a different flavor every time you read. Okay? Thank you, sir. One last question. नहीं? Okay, I'm happy. I think we'll close. Yeah. वो गुस्सा हो गया तुझ पे, उनको खाना जाने था. Jai Hind sir, Yes. my name is Aritra.
So, sir, you spoke about case competitions, to participate in case competitions. So I just wanted to know what are the prerequisites, because we have just started our career, college here. We have not completed the education or not even started what we came to study. So what are the prerequisites for case competitions? So he has a very practical question. While solving case studies, maybe you can take another a month or so before you start doing it. All you need is basic understanding of the business in solving case studies, and you need to know a few frameworks, right? In case you want to get good in case studies, right? There is a very good book that usually we were told to read when we used to be in our induction, and that book is Case in Point, right? CASE, Case in Point. So this is a ready-made book. अगर आप पढ़ते हो, it's थोड़ा heavy है. Maybe some of you may not get it at the first read. It's a bit heavy, but a very practical book. It teaches you how to actually build case study learning, right? So you can start reading that. You can purchase that. It's a small 300-400 pages book. So that's a good read as a first semester student, I believe. Okay. Thank you, sir. पीछे वाले जो है उनके आंखों में मुझे भूख दिख रही है, तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं, राइट? सो आई कंक्लूड. आई थिंक यू गाइज हैव बीन अ ब्रिलियंट ऑडियंस. आई रियली लव्ड इंटरेक्टिंग विद यू. मतलब मेरे लिए वो निकोटिन है, सो आई डोंट ड्रिंक या स्मोक. तो मैं बोलता हूँ मुझे किक मिलती है जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ. सो आई रियली लव्ड इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. ओके, ऑल द बेस्ट.